Hello everyone, welcome to our YouTube channel Divine Learning, and today we will see the exercise question of chapter 4. Okay, we have discussed this chapter in the previous video. The chapter name was The Blue Light, written by Vikom Muhammad Bashir. Okay, and it was very nice story about a ghost. Okay, the ghost name was Varavi. Okay, and the speaker is about a writer. Okay, we have studied this story, so today we are going to study about the exercise questions. Okay, so let's start. First one is comprehension. Complete these sentences in your own words. The speaker let the lantern burn out because, so here they are asking why the speaker let the lantern burn out. So we can write the speaker let the lantern burn out because he was so much engrossed in his writing. Okay, he was very busy or engrossed in his writing. Second one, the speaker played cards with his friends because they insisted him, and also it was raining outside. वो उनके साथ कार्ड्स इसलिए खेलने लगा क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट किया था और वैसे भी बाहर में बारिश हो रहा था. The speaker felt like weeping because he suddenly started feeling sadness. Okay, तो स्पीकर का रोने का मन किया क्योंकि वो अचानक से बहुत दुखी फील करने लगा. The speaker took a look at the lock because it was shining in the dark. तो स्पीकर लॉक को इसलिए देखता है क्योंकि वो साइन कर रहा था अंधेरे में भी. ठीक है. The speaker was scared by the blue light because when he left the house there was no light, but when he came he saw there was light. So the speaker was scared by the blue light. Okay, so here you will write the speaker was scared by the blue light because when he went there was no light. या फिर when he left the house there was no light. Okay, next B question. Read these lines from the text and answer the question. Okay, so one of them laughed and said, couldn't you have asked Bhargavi to fetch you some kerosene? I too laughed, but I didn't say anything. So first question is, why do you think the speaker kept quiet? तो यहाँ पे स्पीकर चुप क्यों रहा? क्या लगता है आपको किस कारण वो चुप रहा होगा? So I think the speaker kept quiet because he didn't want to argue with his friends. ठीक है? And second question is, do you think that the friend expected the speaker to laugh along with him? Why do you think so? तो क्या आपको ऐसा लगता है कि उसके जो स्पीकर के जो फ्रेंड्स थे वो चाहते थे कि स्पीकर भी उनके साथ हंसे, और आपको ऐसा क्यों लगता है? ओके, सो यस, आई थिंक द फ्रेंड एक्सपेक्टेड द स्पीकर टू लाफ along with him because आई थिंक सो बिकॉज दे वर मेकिंग फन ऑफ हिम. ठीक है, वो उनका मजाक उड़ा रहा था. Second question, I didn't tremble with fear, I just stood there stunned. What do you think was the first feeling that the speaker experienced? जब स्पीकर ने अचानक से अपने रूम में ब्लू कलर का लाइट देखा तो उसने उसका फर्स्ट फीलिंग क्या होगा वो आपको बताना है. क्या उसने एक्सपीरियंस किया होगा? सो ऑफ कोर्स he would have stunned. ठीक है, surprise, the first feeling that he might have felt would have been surprised. Okay, and second one is describe the mood of the story at this point. इस point पे story का mood कैसा है? ठीक है, so here we can say the mood of the story at this point is little frightening. Okay, थोड़ा डरावना है. Thus the mystery make the story more chilling. क्या इस स्टोरी का जो मिस्ट्री, इसका जो रहस्य है कि आखिर वो ब्लू लाइट आ कहाँ से रहा था, क्या ये बात स्टोरी को और भी ज्यादा डरावनी या फिर और भी ज्यादा रोमांचक बनाता है? तो ऑफ कोर्स यस, द मिस्ट्री मेक द स्टोरी मोर chilling. Next C question is answer in detail. Where and when does this story take place? Explain how you understand this. तो कब और कहाँ हो रहा है ये स्टोरी? ठीक है, तो दिस स्टोरी इज इन वेरी ओल्ड टाइम्स. ठीक है, बहुत ही पुराने समय में हो रहा है बिकॉज देयर वाज नो लाइट, नो इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज in the village area there were no electricity. And second, when I think old time, where it will the answer for where will be uh, in the outskirts of Kerala. Okay, outskirts of a village in Kerala. केरला के गांव के आउटस्कर्ट्स में. ठीक है, यानी कि गांव के बाहर में. ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस एट द स्पीकर्स फ्रेंड लॉजिंग. स्पीकर के जो फ्रेंड थे उनके घर के पास क्या होता है? तो द
at the speaker's friend lodging. His friends were playing cards and they insisted him to play. Okay. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन एंड ऑल्सो यहाँ पे 1 पॉइंट आपको एक और ऐड करना है कि दे वर मेकिंग फन ऑफ द स्पीकर, ओके, क्योंकि वो उसका मजाक उड़ाते हैं कि वैरगबी से क्यों नहीं तुमने बोला ऐसा, ठीक है, तो एक तरह से उसका मजाक भी उड़ाते हैं यहाँ पे. थर्ड क्वेश्चन इज द स्पीकर टेल्स अस अबाउट द वेदर एंड हाउ डार्क इट वाज आउटसाइड. व्हाई डू यू थिंक ही डज दिस. ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि स्पीकर जो है वो डिस्क्राइब करता है वहां के मौसम को और ये भी बताता है कितना अंधेरा था बाहर में. तो आपके अकॉर्डिंग वो ऐसा क्यों करता है, क्यों वो वेदर को डिस्क्राइब करता है, तो क्या रीजन हो सकता है. वो वेदर को इसलिए डिस्क्राइब करता है ताकि वो दिखा सके कि कितना वो डरावना माहौल पैदा कर सके. ठीक है, स्टोरी में वो डरावनी बात पैदा, वो चिलिंग बात पैदा कर सके कि कितना डरावना माहौल था और उस अंधेरे में, उस उतना खराब वेदर में वो अकेला था, तो ताकि उस स्टोरी को और ज्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व हो सके. ओके, so the speaker tells us about the weather and how dark it was outside. I think he does this because he wanted to make the story more chilling. Okay, next fourth number is why does the speaker tell us how he felt when he entered his house. तो स्पीकर ऐसा क्यों कहता है, अपनी फीलिंग क्यों बताता है जब वो घर के अंदर प्रवेश करता है, उस समय की फीलिंग क्यों बताता है. तो वो इसलिए बताता है क्योंकि वो दिखाना चाह रहा है कि अब वो घर के अंदर जब एंटर कर रहा है तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, उसे बुरा लग रहा है कि वो अपने घर को छोड़ के गया है, मतलब उसे अचानक से ऐसा बुरा लगने लगा. ठीक है, तो ये शो कर रहा है कि अचानक से उसके मूड चेंज हो गए. जब वो अपने दोस्तों के घर पे था तब वो खुश था, वहां पे खेल रहा था, लेकिन जब वो वापस आया तो उसका मूड चेंज हो गया. तो स्पीकर अपनी फीलिंग इसलिए बताता है ताकि वो ये दिखा सके कि उसका मूड चेंज हो चुका है. ओके, सो यहाँ पे आप कर सकते हैं द स्पीकर टेल अस हाउ ही फेल्ट व्हेन ही एंटर्ड हिज हाउस so that we can know about his mood change. Okay, next fifth question is do you think what the speaker saw was real or was he imagining things because he had heard people say that the house was haunted. सो यहाँ पे दो क्वेश्चन है कि क्या आपको लगता है कि स्पीकर ने जो देखा वो सच था और या फिर वो सिर्फ इमेजिन कर रहा था, क्योंकि लोगों ने उसके मन में ये बात भर दिया था कि इस घर में भूत है भूत है, तो क्या वो इमेजिन कर रहा था या वो सच में रियल था. तो यहाँ पे आपके बेसिस के अकॉर्डिंग आप आंसर दोगे. सो मेरे अकॉर्डिंग आई थिंक व्हाट द स्पीकर सॉ वाज नॉट रियल. ठीक है, वो बस इमेजिन कर रहा था चीजों को. ठीक है, क्योंकि लोगों ने उसके मन में ये बात भर दिया था. नेक्स्ट डी क्वेश्चन आते हैं थिंक एंड आंसर में. How does the speaker create an eerie atmosphere in the story? Which part did you find the scariest? ठीक है, eerie मतलब होता है बिल्कुल एजी टाइप में, बहुत ही डरावना, कि अब लगे कि अब पता नहीं क्या होने वाला है, क्या होने, मतलब बहुत ज्यादा बिल्कुल एज पे पहुंचा देना. ठीक है, तो स्पीकर ये एरी एटमॉस्फेयर कैसे क्रिएट करता है, तो वो कैसे क्रिएट करता है, वो वहाँ के वेदर के बारे में बताता है. जब वो बोलता है कि बहुत सुनसान रास्ता था, बिल्कुल क्लाउड्स डार्क हो गए थे, कहीं भी एक भी इंसान नहीं था, बारिश होने लगा था, तो ये स्टोरी को मतलब और स्केरी बना रहा है. ठीक है, क्योंकि अब हमको लगता है कि अच्छा अब तो नेक्स्ट मंथ पक्का घोस्ट का एंट्री होने वाला है. ठीक है, तो इसलिए ये जो पार्ट था कि जहाँ पे वो वेदर को डिस्क्राइब कर रहा है, वो पार्ट मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा डरावना था. ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इज what do you think happens after the speaker sees the blue light. Come up with your own ending for the story. So यहाँ पे आपको अपने मन से स्टोरी का एंडिंग देना है. जैसे हमने स्टोरी पढ़ा तो उसमें एंडिंग नहीं था, उसमें कहानी यहीं पे खत्म हो गया कि स्पीकर ने ब्लू कलर का लाइट देखा अपने रूम में. ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होगा वो आपको बताना, इसमें डिस्क्राइब करना, एक तरह से अपने मन से क्रिएट करके एक एंडिंग बनाना है. ओके, सो अब आते हैं हम ग्रामर पे. There was no one on the road and no light. I would have to wait for the rain to stop or get wet. ठीक है, तो यहाँ पे एंड और को क्या किया गया है, बोल्ड लेटर्स में लिखा गया है. ठीक है, और इसे हम अपने लैंग्वेज में क्या कहते हैं, कंजक्शन, या फिर इसे आप अभी पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. ओके, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है, ये दो वर्ड्स को ज्वाइन करता है या फिर दो फ्रेजेस को ज्वाइन करता है या दो क्लॉजेस को ज्वाइन करता है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो पढ़ा एंड और. तो यहाँ पे जान लीजिए कि हम एंड का यूज कब करते हैं, और का कब करते हैं, बट कब यूज करते हैं, एट कब यूज करते हैं. ठीक है, तो एंड हम तब यूज करते हैं जब हमें दो सिमिलर आइडियाज को ऐड करना हो. ठीक है, जब ऐड करना हो, जैसे देयर वाज नो वन ऑन द रोड, रोड पे कोई नहीं था, और
लाइट भी नहीं थी। तो यहाँ पे दो सिमिलर बातों को हम जोड़ रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे एंड का यूज किया है। और आई वुड हैव टू वेट फॉर द ट्रेन टू स्टॉप और गेट वेट। और जब आपके पास ऑप्शन हो, चॉइसेस हो, ठीक है, तब हम और का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट, आई वॉज सैड बट आई डिड नॉट नो वाई। और जब आपको दो अपोजिट सेंटेंसेस को ऐड करने हो तो हम क्या यूज करते हैं, बट। ठीक है, एंड आई वॉज एफ्रेड एट आई स्टिल वॉकड अप टू माई बेडरूम। ठीक है, और जब आपको मतलब दिखाना है ऐसे सेंटेंसेस कि आप कुछ काम नहीं करना चाह रहे फिर भी आप कर रहे हैं, ठीक है, फिर भी जो होता है वो होता है एट। ओके, तो ये सब थे आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, नेक्स्ट, बाय वन शर्ट एंड यू गेट द सेकंड एट हाफ प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये कंपाउंड सेंटेंस है। ओके, कंपाउंड सेंटेंस एक्चुअली क्या होता है, have two or more main clauses which are joined using coordinating conjunction। ठीक है, तो हमने क्लॉजेस पढ़ा था, ठीक है, क्लॉजेस एंड फ्रेज पढ़े थे। ओके, सो यहाँ पे देखिए क्लॉजेस के पास क्या होता है, खुद का सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है। ठीक है, हमने पढ़ा था क्लॉज के पास खुद का सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट प्लस वर्ब भी होता है। ओके, तो यहाँ पे बाय वन शर्ट ये एक इंडिपेंडेंट क्लाउज है। ओके, और यहाँ पे यू गेट द सेकंड हाफ प्राइस ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लाउज है। ओके, सो ये कंपाउंड सेंटेंस है जिसमें कि दो या दो से मेन क्लाउज, ठीक है, दो या दो से मेन क्लाउज एक साथ ज्वाइन किए गए, उसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करके, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने कंपाउंड नाउन पढ़ा होगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड सेंटेंस। तो यहाँ पे दो मेन क्लॉजेस को ज्वाइन किया गया है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के हेल्प से। ओके, नेक्स्ट, मेन क्लॉजेस आर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एंड कैन स्टैंड अलोन, दे हैव अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। ठीक है, तो मेन क्लॉज जो होता है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, उसे किसी पे डिपेंड नहीं करना होता है। ठीक है, वो अकेले एक सेंटेंस बन सकता है या फिर चाहे तो एक और क्लॉज के साथ ऐड होके एक नया सेंटेंस बन सकता है। ठीक है, और उनके पास खुद का एक सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है। नेक्स्ट है, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस यूजिंग एंड और बट और एट। ओके, मतलब आपको ये फोर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करके यहाँ पे सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ठीक है, दिस डिश इज लिटिल स्पाइसी बट सरप्राइजिंगली हेल्दी, यू शुड हैव मोर ऑफ इट। तो यहाँ पे देखिए दो अपोजिट सेंटेंसेस को ऐड किया गया है बट के यूज से। ठीक है, सेकेंड वन इज दिस दुपट्टा इज ब्यूटिफुल डैश लाइट, यू विल फाइंड इट इजी टू बियर। ठीक है, तो यहाँ पे दो सिमिलर आइडियाज हैं कि ये दुपट्टा सुंदर है एंड यहाँ पे क्या होगा, एंड लाइट। ठीक है, ये दुपट्टा सुंदर भी है और हल्का भी है। तो यहाँ पे दो सिमिलर बातों को हम ऐड कर रहे हैं। ओके, और बाकी सारे आपको वैसे ही कर लेने हैं। ठीक है, आई होप आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट बी क्वेश्चन है, join these sentences using the correct coordinating conjunction, write them in your notebook। ठीक है, तो आपको करेक्ट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करके इन सेंटेंसेस को रीराइट करना है, फिर से लिखना है। ओके, सो फर्स्ट वन इज मृणाल लव्स टू रीड, ही वांट्स अ न्यू बुक फॉर हिज बर्थडे। ठीक है, तो यहाँ पे दो सिमिलर आइडियाज है कि मृणाल को किताब पढ़ना पसंद है और वो अपने बर्थडे पे एक न्यू बुक चाहता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मृणाल लव्स टू रीड एंड ही वांट्स अ न्यू बुक फॉर हिज बर्थडे। तो यहाँ पे एंड का यूज करके हमने इन दोनों सेंटेंसेस को ऐड कर दिया। ठीक है, सेकंड वन इज दिस इज अ डिफिकल्ट सम, वी विल वर्क आउट द सॉल्यूशन इफ वी कीप ट्राइंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस इज अ डिफिकल्ट सम बट वी विल वर्क आउट द सॉल्यूशन इफ वी कीप ट्राइंग। ओके, तो यहाँ पे हमने बट का यूज करके इन दो सेंटेंस को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो वैसे ही आपको बाकी करने हैं। एक ये 6 नंबर बता देती हूँ, कबीर वेंट इनटू हिज रूम डैश ही टाइडेड इट अप। तो यहाँ पे क्या होगा, कबीर अपने रूम में गया और उसने रूम को साफ कर दिया। तो यहाँ पे हम एंड का यूज करेंगे। ओके, कबीर वेंट इनटू हिज रूम एंड ही टाइडेड इट अप। ओके, नेक्स्ट आते हैं वोकैबुलरी में। आई पिक्ड अप द लैम्प एंड शुक इट। तो यहाँ पे पिक्ड अप जो है ये क्या है, फ्रेशल वर्ब है। ठीक है, हमने फ्रेश पढ़ा था, तो ये फ्रेशल वर्ब है। ठीक है, फ्रेशल वर्ब पिकअप मींस टू लिफ्ट समथिंग अप फ्रॉम अ सरफेस ऑन विच इट इज रेस्टिंग। पिकअप का मतलब क्या होता है, किसी चीज को उठाना। ठीक है, सरफेस पे कोई चीज कहीं पे रखी है उसको वहां से लिफ्ट करना यानी कि उठाना। ओके, तो यहाँ पे कुछ और फ्रेशल वर्ब है पिक के यूज करके। ठीक है, पिक का यूज करके कुछ और फ्रेशल वर्ब है और यहाँ पे उनके मीनिंग्स लिखे हुए हैं।
तो मैं वन बाय वन उनको एक्सप्लेन कर देती हूँ। पिक एट मतलब होता है टू ईट ओनली स्मॉल अमाउंट्स ऑफ अ मील बिकॉज यू डू नॉट फील हंग्री। ठीक है, पिक एट मतलब होता है थोड़ा सा ही खाना क्योंकि आप भूखा नहीं महसूस कर रहे हैं। ओके, सेकेंड वन इज पिक ऑन का मतलब होता है टू कीप ट्रीटिंग समवन बैडली और अनफेयरली, मतलब किसी के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करना। एंड पिक आउट का मतलब होता है टू चूज वन थिंग और पर्सन फ्रॉम अ ग्रुप। पिक आउट मतलब होता है किसी एक चीज को चूज करना, एक ग्रुप से चूज करना। ओके, पिक ओवर मतलब होता है लुक थ्रू थिंग्स केयरफुली टू रिजेक्ट द वंस दैट यू डू नॉट वांट। पिक ओवर का मतलब होता है कि आप चीजों को बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं और जो आपको पसंद नहीं उन्हें रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये पिक आउट एंड पिक ओवर दोनों आपको सिमिलर टाइप मिलेगा लेकिन सिमिलर है नहीं। यहाँ पे पिक आउट का मतलब है कि आप किसी एक को चूज कर रहे हैं, लेकिन पिक ओवर का मतलब है कि आप चीजों को रिजेक्ट कर रहे हैं। ओके, पिक ऑफ मतलब होता है टू शूट एट वन पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल और व्हीकल दैट यू हैव चूजन फ्रॉम अ ग्रुप। पिक ऑफ मतलब किसी एक चीज पे शूट करना, चाहे किसी एक पर्टिकुलर पर्सन पे, ठीक है, या फिर एनिमल या व्हीकल पे जिसे आपने ग्रुप से चूज किया है। ओके, सो अब क्या करना है आपको, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द फ्रेशियल वर्ब्स फ्रॉम द लिस्ट अबव। तो आपको इस सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है करेक्ट फॉर्म ऑफ फ्रेशियल वर्ब्स का यूज करके। ठीक है, जैसे पहला है यहाँ पे, मिसेस वर्मा जेंटली डैश द शिवरिंग किटन एंड पुट इट ऑन हर लैप। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, उसे उठा लिया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, picked up. Okay, तो मिसेस वर्मा जेंटली picked up the shivering kitten and put it on her lap. Okay, next second one, Faiza dashed the sari she liked best from the pile. तो उसने वो चूज किया, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पिक आउट। तो फैजा पिक्ड आउट द सारी शी लाइक्ड बेस्ट फ्रॉम द पाइल। और वैसे ही आपको बाकी सारे करने हैं, तो मैं लास्ट वाले का बता देती हूँ। Why are you dash your food? Aren't you hungry? तो यहाँ पे क्या होगा, पिकिंग एट, क्योंकि इसको खाने का मन नहीं है तो यहाँ पे ing लगाएंगे। ओके, Why are you picking at your food? Aren't you hungry? ओके, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, स्पीकिंग लिसनिंग आपको करना नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं राइटिंग में। राइटिंग में क्या करना है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम और हर अबाउट अ स्कैरी फिल्म दैट यू वॉच्ड ड्यूरिंग द समर हॉलीडेज। फॉलो दिस फॉर्मेट। ओके, सो यहाँ पे आपको अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखना है। ठीक है, और लेटर में आपको डिस्क्राइब करना है एक फिल्म के बारे में, एक डरावना फिल्म जो कि आपने देखा है, ठीक है, अपने समर हॉलीडेज में। ओके, सो यहाँ पे कुछ कुछ हिंट्स भी दिए हुए हैं। सबसे पहले तो आपको अपना एड्रेस लिखना होगा, ये लेटर का फॉर्मेट है। सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखेंगे, फिर डेट लिखेंगे, उसके बाद क्या आता है, सैल्यूटेशन। ये जो डियर और अपने फ्रेंड का नाम लिखते हैं यहाँ पे, तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, सैल्यूटेशन। ओके, और उसके बाद फिर आपका आता है फर्स्ट पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ में आप लोग क्या करते हैं, जनरल ग्रीटिंग करते हैं, मतलब दोस्त से उसके हालचाल के बारे में जानते हैं, फिर आप अपना हालचाल बताते हैं कि आप कैसे हैं। ओके, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, अपने फिल्म के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन देंगे कि हम क्यों गए थे, किसके साथ गए थे, कहाँ पे गए थे, ठीक है, क्या नाम था मूवी का, ये सब यहाँ पे हम बताएंगे। सेकेंड पैराग्राफ में हम क्या लिखेंगे, शॉर्ट समरी अबाउट द प्लॉट, द बिट्स दैट यू फाउंड स्कैरियस्ट एंड व्हाई। ठीक है, तो एक तरह से हम उस पूरी कहानी को, जो हमने मूवी देखी है, उस कहानी को पूरे शॉर्ट में वहां पे लिख देंगे। ठीक है, और ये भी बताएंगे कि सबसे डरावना पार्ट कौन सा लगा, सबसे डरावना पार्ट, ठीक है, और क्यों लगा, आखिर ऐसा क्या बात हो कि आपको सबसे डरावना लगा पूरे मूवी में। ठीक है, एंड थर्ड पैराग्राफ में आप क्या करेंगे, अपने थॉट्स लिखेंगे उस फिल्म के बारे में, कि आप क्या सोचते हैं उस फिल्म के बारे में, और आपको उस मूवी को देखने के बाद कैसा महसूस हुआ, और क्या आप उसे अपने फ्रेंड को रेकमेंड करेंगे कि हाँ तुम्हें भी ये मूवी देखना चाहिए, क्या उसे आप सजेस्ट करेंगे। ओके, और लास्ट में फिर जाके आप ये विथ लव या फिर योर अफेक्शनेटली लिख दे के अपना नाम लिख देंगे। ठीक है, तो यही होता है एड्रेस का, सॉरी लेटर का फॉर्मेट। ओके, और आपको इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को। ठीक है, सो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोग को ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।